Now let us discuss the amendments relating to the registration. So, one important amendment that has been made in relation to registration is, earlier we have to give, say, our mobile number and email address where OTP used to come, and then verification of that one-time password. After verification of the one-time password, we were entitled to, say, fill the part B of the application for registration. Okay. Now, the one-time password will be sent to the mobile number and email address which is linked with PAN. This amendment has been made. PAN linked mobile number, PAN linked email address, on that one-time password will be sent. Then only will be able to, say, fill up our part B of the application. Besides this, one amendment is that now they are starting a project basically for biometric based Aadhaar authentication. Now this has been started in the state of Gujarat. Other states have not been, this has not been implemented. Therefore, the provisions which has been amended relating to biometric based Aadhaar authentication, that has been based on, say, biometric based Aadhaar authentication on risk parameters, here that has been applicable in the state of Gujarat. Besides this, on the basis of data analysis and other risk parameters, even if there is a successful Aadhaar authentication, they can go for what? Physical verification of the premises. So these amendments have been made, and let us discuss how the institute has provided for the same. So here, amendments relating to what? Procedure of registration. When we see the procedural compliances, Rule 8 and Rule 9 is there. Rule 8 and Rule 9, they have been amended to carry out what? The following amendments. What are the amendments? Number one is PAN linked mobile number and email address. It is what? PAN linked mobile number and email address which has been fetched from CBDT database will be captured and recorded in Form GST RE01, that is application for registration, and OTP based verification, this one-time password based verification, the same will be conducted at the time of registration on such PAN linked mobile number and email address to restrict what? The misuse of PAN of a person by unscrupulous elements without knowledge of the said PAN holder. So that this amendment has been made. Beside this, a pilot project is to be conducted in the state of Gujarat, basically for what? Biometric based Aadhaar authentication. Biometric based Aadhaar authentication and risk based physical verification of the registration applicants. So for this purpose, they have made the amendments in Rule 8 and 9. So to facilitate this biometric based Aadhaar authentication. This will basically help the fake registration, जो फर्जी registration and fraudulent registrations है, वो इससे क्या है, उनके हिसाब से खत्म होंगे. तो अब देखिए जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, लेट अस डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. अंतर कितना आया इसमें? अंतर एक ये आया कि आपका जो वन टाइम पासवर्ड है वो कहाँ पे आएगा? वो जो पैन में और पैन के अंदर जो आपने आपका मोबाइल नंबर डाला है, पैन के अंदर जो आपने ईमेल डाला है, उस पे आएगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. एक तो ये अमेंडमेंट है. दूसरा ये है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल भी हो गया तो भी क्या कर सकते हैं, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं प्रीमाइसेस का, अगर डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से उनको अगर ऐसा लगता है. तो देखिए, एवरी पर्सन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग, दिस इज नॉट एंटायर इज नॉट बीन अमेंडेड, जस्ट दी for a better sake of understanding, the institute has given the entire registration procedure. So every person who is liable to get registered has to, also a person who is say seeking voluntary registration, before say applying for registration, he has to declare his permanent account number. Earlier it was what? Earlier it was email and mobile number. Now this is not there, because this email
and mobile number which is linked with PAN. On that, one-time password will be sent. Then only you'll be able to say go further. So every person liable to get registered and the person seeking voluntary registration shall, before applying for registration, he has to declare his permanent account number and state and union territory in part A of form GST RE01 on the common portal. Now here PAN is validated. PAN is validated by the CBDT database and is also verified through separate one-time passwords which have been sent to PAN linked mobile number and email address. Now this is the amendment. This is the amendment. So here one-time password will be sent to PAN linked mobile number and email address. Then temporary reference number will be generated and communicated to the applicant on the validated mobile number and the email address. This TRN will be generated and communicated. Using the temporary reference number, applicant shall electronically submit what part B of the application form along with the specified documents at the portal. So basically then he will be able to proceed further. So basically what part B of the application contains, it contains the constitution, what is the constitution of business, the jurisdictional details, whether you have opted for composition scheme or not, what is the date of commencement of business, what is the reason for obtaining the registration, and what is the principal place of business address and address of the principal place of business, nature of the activities which you are carrying out, additional place of business, details relating to the same, details of bank account, details of authorized signatory, Aadhaar authentication, etc. Then here on receipt of the application, an acknowledgement in prescribed form shall be issued to the applicant electronically. Now here, as you are aware that relating to the casual taxable person and special provisions have been made under section 27 for the non-resident taxable persons. So here we are dealing with the casual taxable person, NRTP separate registration procedures there. Basically they have to deposit what? They have to make advance deposit of estimated tax liability. This advance deposit of estimated tax liability is net of ITC. That is net of ITC. Okay, eligible ITC. So they have to make, say on receipt of the application, basically an acknowledgement in the prescribed form is say generated electronically. Here the casual taxable person applying for registration, they will get a temporary reference number for making the advance deposit of the estimated tax liability in the electronic cash ledger, and the acknowledgement will be issued after the said deposit. Okay. Then when we have made the application, this application will be forwarded to the proper officer. And what happens is, we have been given an option of Aadhaar linked, say Aadhaar linked, Aadhaar based authentication is there, where the link will be sent to the, email and PAN number. And when we say open the link, one time password, then this verification takes place, verification is complete. This is successful validation of your Aadhaar number is there. So here, if the successful validation of Aadhaar number was there, then the registration is granted, say within 7 working days from the date of submission of the application without verification of the site. But in certain cases, if on the basis of data analysis and risk parameters, if a person has undergone Aadhaar authentication, then also they can visit the site, verify the same, and then registration will be granted within 30 days of the application. So let us start what will be the procedure which will be adopted by the proper officer. Now here the proper officer examines the application and the accompanying documents. In case if the same are found in order, then he will grant registration within 7 working days, from the date of submission of application without site verification, if the applicant successfully validates his Aadhaar number. If the applicants successfully validate
his Aadhaar number. Okay. Then, besides this, if the applicant fails to undergo Aadhaar authentication, if the applicant fails to undergo Aadhaar authentication or he does not opt for Aadhaar authentication, then the registration will be granted within 30 days. Then the registration will be granted, say, within 30 days of the application after verification of the site and prescribed documents. So, registration is to be granted within 30 days of the application after verification of site and prescribed documents when the, अगर एप्लीकेंट क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं करता है या उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, या फिर क्या है जहां प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी, जहां प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू कैरी आउट द साइट वेरिफिकेशन वहां पे, या फिर क्या है, ये नया जुड़ा है, न्यू अमेंडमेंट जो हुआ है ये हुआ है, एक तो ऊपर ओटीपी वाला हो गया, एक ये है वेयर अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन आधार ऑथेंटिकेशन, वेयर अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन आधार ऑथेंटिकेशन is identified on common portal, is identified on common portal based on, say, data analysis, based on data analysis and risk parameters to carry out what, site verification. ठीक है, तो यहाँ पे आरसी जो दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन जो दिया जाएगा 30 दिन के अंदर दिया जाएगा ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट एंड द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स. अब यदि हमने एप्लीकेशन लगाई एंड if the same are not found in order, documents है, they are not found in order, proper officer not satisfied with the documents, तो फिर वो क्या करेगा, आपको भेजेगा एक नोटिस, आपको भेज रहा है वो नोटिस, इशूज अ नोटिस कि आप ये क्लैरिफिकेशंस, ये इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कीजिए. ठीक है, ये नोटिस भेजा जा रहा है, ये नोटिस भेजा जा रहा है विद इन 30 days of the submission of the application. तीनों ही केसेस में यदि पर्सन ने, जैसे नीचे थी वो पहले पढ़े वैसी, अगर पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है, उसका फेलियर हो जाता है, या प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन, या फिर जो डेटा एनालिसिस है एंड रिस्क पैरामीटर्स है, ये अमेंडमेंट है, उसके माध्यम से उनको क्या है, साइट वेरिफिकेशन करना है, भले ही से उस व्यक्ति का सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन हो गया हो, तो 30 दिन के अंदर उसको क्या है, नोटिस जारी किया जा रहा है. अन्य परिस्थितियों में क्या है, 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन उनको क्या है, नोटिस जारी किया जा रहा है. अब ये दिया गया नोटिस, तो एप्लीकेंट को जो क्लैरिफिकेशंस देने हैं, इंफॉर्मेशन देनी है, जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कितने दिन के अंदर देने हैं, 7 दिन के अंदर देने हैं. ठीक है, 7 वर्किंग डेज के अंदर उसको देने हैं फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस. वो दे देता है उनको और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फैक्शन हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो क्या है, फिर प्रॉपर ऑफिसर उसको ग्रांट कर देगा आरसी विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. और अगर ये इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट नहीं देता है, या प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विच ही हैज सबमिटेड, तो फिर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर विल व्हाट, रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. यहां पे बेसिकली क्या है, क्लैरिफिकेशन इट इंक्लूड्स व्हाट, द मॉडिफिकेशंस या करेक्शंस वॉट एवर ऑफ द पर्टिकुलर्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन अदर देन द पैन नंबर, स्टेट कोड, मोबाइल एंड ईमेल, क्योंकि तो पैन लिंक्ड है, इनके अलावा. ठीक है, अब एप्लीकेशन कब अप्रूव हुई हुई मान ली जाती है, अगर आपका सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो गया आधार का और कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया है. ठीक है, अगर आपका सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो गया है आधार का और कोई एक्शन नहीं लिया है ए केस के अंदर विद इन 7 वर्किंग डेज, बी केस के अंदर 30 दिन के अंदर, सी केस के अंदर जब उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी हमसे, हमने इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी उसके 7 दिन के अंदर, तो वो टाइमलाइन स्पेसिफाइड है. उस टाइमलाइंस के अंदर अगर कोई भी एक्शन नहीं लेता तो बट नेचुरल है, ये क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन. तो इफ द प्रॉपर ऑफिसर
fails to take any action in the following cases within say stipulated time. ठीक है, the application for registration shall be deemed to have been approved. केस बी में क्या आ रहा था, जहां आपने नो आधार ऑथेंटिकेशन या आपके फेलियर हो गया था, या आपने रिस्क और डेटा एनालिसिस से जहां आधार ऑथेंटिकेशन हुआ था, वहां जहां फिजिकल वेरिफिकेशन करने की बात थी, ठीक है, या उनको लग रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन करना है प्रीमाइसिस का, तो उसके 30 दिन के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, या फिर क्या है जहां आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है और बी वाले केस में नहीं है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इन्होंने क्या है, शो कॉज नोटिस दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे, उसका अपन ने रिप्लाई दे दिया, 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना था, अपन ने रिप्लाई दे दिया और रिप्लाई के 7 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया। सो इन केसेस कवर्ड अंडर सी विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। तो thus in case of successful authentication of Aadhaar and no SCN is been issued, registration will be deemed to have been granted within say 7 working days. However, if Aadhaar authentication is not opted, या there is a failure in validation of the Aadhaar, या proper officer wants to make further site verification और कोई SCN जारी नहीं किया गया है, या फिर registration basically will be what deemed to be approved within 30 days by the tax officials, या फिर जब आपके आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है, डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से फर्दर करना है उनको फिजिकल वेरिफिकेशन और 30 दिन के अंदर एक्शन नहीं लिया जाता, तो रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू हैव बीन से अप्रूव्ड। शो कॉज नोटिस जारी करने के 7 दिन के अंदर अपन ने रिप्लाई कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो भी क्या है, रजिस्ट्रेशन विल बी व्हाट डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड, ठीक है, 7 वर्किंग डेज के अंदर। आधार ऑथेंटिकेशन की बात करें, सारी चीज़ें पुरानी हैं, इसमें कोई नई चीज़ है नहीं। तो एस सीन अबव, ये कोई मतलब अमेंडमेंट वाला पार्ट नहीं है, अमेंडमेंट वाला पार्ट हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके, नीचे थोड़ा सा और आएगा। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन गुजरात में, बस इतनी सी ध्यान रखनी है। तो एज सीन अबव देयर इज सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अंडर GST, हाउएवर दिस इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर वाज अनड्यूली मिसयूज्ड बाय फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, आज हैं कहाँ कल कहाँ। Thus, in endeavor to curb and check such operators and to increase compliance, क्या था, आधार eKYC based registrations were been introduced under the GST law. Aadhaar authentication is mandatory for what? The new applicants, चाहे वो इंडिविजुअल एप्लीकेंट हो, और अगर एप्लीकेंट अदर देन इंडिविजुअल है तो उनके लिए उनके जो मैनेजिंग पर्सनल्स हैं, एक प्राइमरी ऑथराइज जो सिग्नेटरीज है, उनका क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए। सो हियर आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर द न्यू एप्लीकेंट्स, वेदर एन इंडिविजुअल एप्लीकेंट और एप्लीकेंट अदर देन इंडिविजुअल एप्लीकेंट, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैज बीन से इंट्रोड्यूस फॉर पर्सन्स अप्लाइंग फॉर GST रजिस्ट्रेशन, चाहे वो नॉर्मल टैक्स पेयर हो, चाहे वो कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, कैजुअल टैक्स पेयर हो, ISD हो, सेज डेवलपर हो, सेज यूनिट हो। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेंट्स को भी दे हैव टू रिक्वायर टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। तो देखिए हाउ आधार ऑथेंटिकेशन इज डन। न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में दे हैव टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, दे गेट एन ऑप्शन वेदर ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन और नॉट, एंड यस इफ यू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, GST system sends an authentication link on the mobile number and email addresses which have been mentioned in the registration application of the promoter या partner and primary authorized signatory which are selected by the applicant. Then on clicking the verification link, जो window है of Aadhaar authentication opens whereby they can enter the Aadhaar number, उसके बाद वो OTP रिसीव होगा उनको, OTP अपने जो OTP आया है मोबाइल नंबर और ईमेल पे जो कि लिंक्ड विद आधार है, वो एंटर करना पड़ेगा। फिर जो आधार ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया, हिज एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड विद इन से 7 वर्किंग डेज, एंड द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हिम विल नॉट बी मार्क्ड मैंडेटरी फॉर साइट विजिट अनलेस टैक्स ऑफिशियल्स इशू शो कॉज नोटिस। ठीक है, ये अमेंडमेंट थोड़ा सा ये आया है
कि डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से हो सकता है कि उसको नोटिस भी आ जाए साइट वेरिफिकेशन का, ठीक है। However, in case the applicant does not opt for आधार ऑथेंटिकेशन, अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है या उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो फिर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड विद इन 7 वर्किंग डेज. It will be marked mandatory for site visit and the approval thereafter by the tax official. Registration application will be deemed to be approved after 30 calendar days यदि tax official does not take any action. यदि शो कॉज नोटिस जारी किया गया विद इन 30 कैलेंडर डेज, एप्लीकेंट को उसको रिप्लाई करना है 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद दे कैन, टैक्स ऑफिसर्स कैन टेक फर्दर एक्शन ऑन दैट रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज. अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई आपके पास रिजेक्शन की बात नहीं आती है, तो आपकी एप्लीकेशन क्या है, अप्रूव हुई भी मान ली जाएगी. जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट्स, जो रजिस्टर्ड पर्सनस हैं, उन लोगों के लिए बोल रखा है कि एज ऑल द रेगुलर टैक्स पेयर्स एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर्स आफ्टर they are also required to get what Aadhaar authenticated for the existing GST registration. तो जो existing taxpayers can get himself Aadhaar authenticated on GST portal using Aadhaar authentication link or uploading eKYC documents. ठीक है. तो basically it is not mandatory for the every authorized signatory या promoter या partner to get Aadhaar authentication. The Aadhaar authentication will be needed only for one primary authorized signatory and one promoter. ठीक है, ये एक notification जारी किया गया है. So basically the persons who are required to undergo Aadhaar authentication, every individual applicant या applicant other than say the individual, they shall undergo Aadhaar say authentication or say furnish proof of possession of the Aadhaar number in manner which has been discussed above. Here, Rule 8.4a provides that where the applicant opts for Aadhaar authentication, he shall, while submitting the application for registration, he will have to undergo Aadhaar authentication. Okay, the said authentication is required to be eligible for grant of registration. So, new registrants, for them Aadhaar authentication is mandatory. And what is the date of submission of the application in this case? The date of submission of the application is the date of authentication of the Aadhaar number, or say 15 days from the date of submission of the application. 15 दिन from the date of submission of the application of Part B in Form GST REG 01. ठीक है, ये इनकी एप्लीकेशन कब सबमिट हुई हुई मानी जाएगी, या तो जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर क्या है 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन. If the applicant is an individual, he shall undergo Aadhaar, his own Aadhaar authentication. और अगर एप्लीकेंट क्या है अदर देन इंडिविजुअल है, तो आधार नंबर आपको चाहिए कर्ता का या मैनेजिंग डायरेक्टर का, होल टाइम डायरेक्टर का, एंड सच नंबर ऑफ पार्टनर्स, मेंबर्स, मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, एंड सच अदर नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स. तो जो ऑथराइज सिग्नेटरीज ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स हो गए, कर्ता हो गया एचयूएफ का, ये नोटिफाई है. ये नया आया है अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट है भैया. क्या अमेंडमेंट है? बायोमेट्रिक बेस्ड अंगूठे लगवाएंगे, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार, आईज, ये सब ऑथेंटिकेशन, ये गुजरात के अंदर ही अप्लाई हुआ है अभी, कि जो पायलट प्रोजेक्ट है वो गुजरात में ही लागू हुआ है. ठीक है, बाद में सब जगह एक्सटेंड करेंगे. ये अमेंडमेंट है. तो इन ऑर्डर टू इंप्रूव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिस्क बेस्ड, बेसिकली बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन of high risk applicants who opt for Aadhaar authentication has been say introduced on pilot basis in the state of Gujarat. तो ये स्टेट ऑफ गुजरात में लागू हुआ है, दूसरे स्टेट्स में नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा. तो एन एप्लीकेंट हु हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर
and is identified on common portal based on data analysis and risk parameters, who has been identified on common portal based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric based Aadhaar authentication. उसका क्या होगा? Biometric based Aadhaar authentication होगा, and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual, या फिर क्या of such individuals where the applicant is other than an individual, along with the verification of what? The original copy of the documents. Along with what? Verification of the original copy of the documents which have been uploaded in the application in form GST REZ 01 at one of the notified facilitation centers. So the application shall be deemed to be complete only after completion of the said process. And acknowledgement shall be issued to the applicant only after, say, completion of biometric based Aadhaar authentication. And every person shall undergo authentication or furnish proof of Aadhaar number in prescribed form if they have been already registered. The manner in which the Aadhaar authentication needs to be done by registered person basically is what? A registered person जिसको क्या है registration certificate already जारी कर दिया गया है, they shall undergo authentication of Aadhaar number. Proprietor का होएगा in case of proprietorship for partner का हो जाएगा, कर्ता का हो जाएगा एचयूएफ के केस में, पार्टनर का हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म के केस में, मैनेजिंग डायरेक्टर का हो जाएगा या होल टाइम डायरेक्टर का हो जाएगा कंपनी के केस में. उसके अलावा एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी या एओपी या बीओआई या सोसाइटी या ट्रस्टी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन केस ऑफ ट्रस्ट. उसके अलावा ऑथराइज सिग्नेटरी, तो एक तो खुद ये हो गया, एक ऑथराइज सिग्नेटरी हो गया. इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पर्पस, ये इसके लिए भी क्या है? फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन या कैंसिलेशन, फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन एंड फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी विच हैज बीन पेड ऑन गुड्स. नोटिफाइड क्लास ऑफ गुड्स के रिलेशन में ही 96 के तहत एक्सपोर्ट हो सकता है. ठीक है, रिफंड ऑफ आईजीएसटी विच हैज बीन पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया. इन केसेस के अंदर भी आपके क्या है? ये आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी. फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, रिफंड एप्लीकेशन एंड फॉर रिफंड ऑफ द आईजीएसटी, फर्जी रिफंड जिससे नहीं ले पाए. देन वेयर आधार नंबर इज नॉट असाइंड, तो इफ इन केस अगर आपको आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू न्यू एप्लीकेंट, जो भी इंडिविजुअल है या पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन्स है, such individual या person or class of persons shall be offered alternative and viable means of identification in the manner specified in rule 9. ठीक है, अदर ऑल्टरनेटिव एंड वायबल मीन्स के तहत करना है. अब देखिए जो रूल 9 है का प्रोविजो क्या बोलता है. यदि किसी पर्सन का फेलियर हो गया है टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, या ही डज नॉट ऑप्ट फॉर से आधार ऑथेंटिकेशन, या ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट है? जिसने आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, जिसका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, इज आइडेंटिफाइड on the common portal based on data analysis and risk parameters, is identified on the common portal based on data analysis and risk parameters. Presently in case of pilot project in Gujarat for carrying out say physical verification of the place of business. एक तो ये, या फिर क्या है? the proper officer with the approval of an officer authorized by the commissioner not below the rank of AC. The proper officer with the approval of an officer authorized by the commissioner not below every rank of AC to carry out say physical verification. तो इन लोगों का क्या होएगा? physical verification होगा premises का. RC ग्रांट किया जाएगा within 30 days of submission of the application only after say physical verification of the principal place of business in presence of the said person. Okay, and verification of the documents as the proper officer deems fit. And where the application submitted is found to be deficient, तो उसके लिए क्या है? प्रॉपर ऑफिसर विल रिक्वायर द कंसर्न पर्सन टू गिव क्लैरिफिकेशंस. कितने दिन के अंदर? 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन. और एप्लीकेंट को फिर क्लैरिफिकेशन क्या है फर्निश करने? जब भी शो कॉज नोटिस आएगा उसके 7 दिन के अंदर. हाउएवर यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन होगा. ठीक है, जब पर्सन 30 दिन के अंदर नोटिस आएगा यहाँ phase 2 say undergo Aadhaar authentication, does not opt for Aadhaar authentication, या person who has undergone authentication of Aadhaar number is identified on the common portal based on data analysis and risk parameters.
ये पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रेमाइसेस या प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी फॉर साइट वेरिफिकेशन, तो उस केस के अंदर क्या होएगा, जो नोटिस दिया जाएगा वो कितने दिन के अंदर दिया जाएगा, नॉट लेटर देन व्हाट 30 days फ्रॉम व्हाट सबमिशन ऑफ द application. The proper officer can ask for further clarification, information and document. Then if Aadhaar number has not been assigned to say existing registration, such person will also be offered alternative and viable means for identification. इसके लिए क्या है, प्रिस्क्राइब क्या किया गया है, यदि आधार नंबर असाइन नहीं हुआ है तो उन लोगों को क्या देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसका एनरोलमेंट आईडी देना है एक तो आधार का, उसके अलावा बैंक पासबुक जिस पे आपकी फोटोग्राफ हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनमें से कोई भी एक हो, ठीक है। हाउएवर वंस आधार ऑथेंटिकेशन, आधार नंबर आपको अलॉट हो जाएगा तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। एंड यदि ऐसा है कि देयर इज अ फेलियर टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन एंड फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर या ऑल्टरनेटिव और वायबल मींस के माध्यम से भी वो नहीं हो पाया तो उसका रजिस्ट्रेशन फिर क्या है, इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। हु आर द पर्सन्स हु हैव बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस आधार ऑथेंटिकेशन, एक तो जो फॉरेन सिटीजन है उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पर्सन्स अप्लाइंग फॉर यूआईएन, ठीक है। तो ये लोग को आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब ये बोला है देखिए कि यहां पे टीडीएस और टीसीएस की जब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे हम, ये टीडीएस और टीसीएस के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। यहां पे क्या है, इन्होंने बोला कि जो रजिस्ट्रेशन है कैन बी कैंसल्ड even if application is made by applicant for cancellation। ये ध्यान रखिएगा, पहले तो प्रॉपर ऑफिसर कर सकता था खुद के ओन मतलब मोशन पे, अब क्या है ये रजिस्ट्रेशन क्या है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैंसलेशन। सो हियर TDS and TCS जो रजिस्ट्रेंट्स है, अर्लियर एज पर रूल 12(3) रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स कुड बी कैंसल्ड ओनली इफ अपॉन इंक्वायरी या परसुएंट टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर CGST एक्ट प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू डिडक्ट और से कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। तो प्रॉपर ऑफिसर इंक्वायरी करने के बाद करता था। There was no option available to the e-commerce operator having TCS registration to apply for cancellation of TCS registration in case of closure of operations of the e-commerce operator. Similarly, no option was available to the TDS registrant to apply for cancellation of TDS registration. तो अब ये अंतर अमेंडमेंट कर दिया है कि जो TDS रजिस्ट्रेंट है या TCS रजिस्ट्रेंट है वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कैंसलेशन के लिए। सो वेयर ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ पर्सन टू होम रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर 1202 जो टीडीएस और टीसीएस रजिस्ट्रेंट्स है, ये एक अमेंडमेंट आ गया कि ये खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपॉन इंक्वायरी, ये पहले से था, इंक्वायरी या पर्सुएंट टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द CGST एक्ट। या द प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है क्योंकि इज नो लॉन्गर लायबल टू डिडक्ट या कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट अभी अपन ने डिस्कस किए, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, तो ये तो ज़्यादा कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंसेस से रिलेटेड हैं, वो देख लीजिएगा एक बार। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स के अंदर, तो जो आपका रूल 46 दे रखा है, रूल 46 में क्या दे रखा है कि जो टैक्स इनवॉइस आप बनाओगे उसमें क्या पर्टिकुलर्स रहनी चाहिए। तो अब जब हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो
तो वहां पे यदि आपकी जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर क्या है, आपको जो नेम है एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद नेम एंड स्टेट, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट और स्टेट कोड, उसके अलावा ये आपको कोट करना होता है, पता है, मतलब आपको टैक्स इनवॉइस के अंदर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ रजिस्टर्ड होता है व्यक्ति, तो उसकी टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन द नेम एंड एड्रेस एंड GSTIN बेसिकली ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। और अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अनरजिस्टर्ड के केस में 50,000 रुपये से कम है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर जो अपन ने अब डिटेल पढ़ी, यानी जो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, उसका नाम है, ये स्टेट एंड कोड, वो चाहे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट चाहे तो वो कोट करा सकता है। अब बात आती है कि यहां पे जो अमेंडमेंट आया है वो क्या है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, वो आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, या फिर जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, एक तरह से अनरजिस्टर्ड यानी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट्स को, अनरजिस्टर्ड पर्संस को। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और OIDR सर्विस सप्लायर्स अगर अनरजिस्टर्ड पर्संस को सप्लाई कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ इनवॉइस, वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज्यादा हो या 50,000 से कम हो, उनको क्या कोड करना जरूरी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट टैक्स इनवॉइस में, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, नेम ऑफ स्टेट, पिन कोड है, ये क्या है, करना है, जरूरी है। तो देखिए जो रूल 46 है, रूल 46 बेसिकली प्रिस्क्राइब्स द पर्टिकुलर्स दैट टैक्स इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन शुड कंटेन। बेसिकली जो मेन बात है, जहाँ रेसिपिएंट, जो अमेंडमेंट से रिलेटेड, जहाँ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन द नेम एंड एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द रेसिपिएंट, और जहाँ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड। जब टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ सप्लाई एक्सीड कर रही है किससे, 50,000 रुपये उससे ज़्यादा है, जब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर इफ इट डज नॉट एक्सीड ₹50,000, जब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली डज नॉट एक्सीड ₹50,000, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, ही मे रिक्वायर दैट द अबव पर्टिकुलर्स मे बी रिकॉर्डेड इन हिज व्हाट, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, कि ही विल रिक्वायर दीज डिटेल्स। तो फिर वो जो सप्लायर उसको ये डिटेल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। And in case of supply of services to unregistered person through online platforms, in particular recipient's address were not properly captured, ये कारण था। तो in case of supply of services to say unregistered persons through online platforms, in particular recipient's address were not properly captured, which affected flow of revenue to the appropriate destination state, क्योंकि GST is basically what, destination based consumption tax. Therefore, following proviso has been inserted in Rule 46 Clause F to ensure mandatory recording of the address. To ensure what? Mandatory recording of the address of the unregistered recipient of service along with the PIN code when the said services they were provided through e-commerce operators, supplier of OIDR services, even if the taxable value of supply does not exceed ₹50,000, even if the taxable value of supply is say less than ₹50,000. So this is the amendment. This is the amendment. That is what? Where any taxable service is supplied by or through a e-commerce operator, if the services are supplied by ECO services supply कर रहा है, या OIDR service supplier services supply कर रहा है non taxable online recipient unregistered person को, irrespective of the value of supply, tax invoice issued by registered person shall contain the name and address of the recipient,
tax invoice will contain the name and address of the recipient along with its PIN code and the name of state, and the said address shall be deemed to be address on the record of the recipient. That address will be what? Deemed to be what? On the record of the recipient. This amendment has been made. Beside this, you know what Rule 46A is. Rule 46A is dealing with what? Invoice cum bill of supply. Now, as you are aware that invoice cum bill of supply is issued by, say, a registered person if he is making supplies to unregistered person, and when he is making taxable and exempted supplies. And basically, this Rule 46A, it begins with a, a non-obstinate clause that notwithstanding anything contained in Rule 46, which is giving the particulars 49 or 54. Basically, what was happening was that the registered persons who were making taxable as well as exempted supplies to unregistered person, they were preparing this invoice cum bill of supply and were not mentioning the particulars which were mentioned in 56 or Rule 49 and 54. Now it has been made mandatory that even when invoice cum bill of supply is issued under Rule 46A, the particulars which are required under 46, 49 and 54 as applicable will be mentioned in the invoice cum bill of supply. So here Rule 46A basically what provided that notwithstanding anything contained in Rule 46, 49 और 54, ये इस तरह से नॉन ऑब्स्टेट क्लॉज से बिगिन करता था कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ सप्लाई कर रहा है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को. टैक्सेबल पर्सन जो क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स सर्विसेज या दोनों सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो क्या बना सकता है? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई एक साथ वो क्या है? बना सकता है. बिल ऑफ सप्लाई एग्जेम्प्टेड के लिए बनता है, टैक्सेबल इनवॉइस बनती है टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, तो इनके लिए ये प्रोविजन था. तो ये बिगिन करा था नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 46, 49 और 54. नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट इन दिस रिगार्ड द नॉन ऑब्स्टेट क्लॉज रूल 46A in 46A actually removes the obligation on the part of registered person who is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to unregistered person to include particulars as prescribed in Rule 46 or 49 or 54 as applicable while issuing invoice cum bill of supply. इसके कारण से क्या हो रहा है? बोले 46 के पर्टिकुलर गए बाढ़ में, 49 रिलेटिंग टू सर्विसेज पर्टिकुलर गए बाढ़ में. ठीक है, ये बात हो गई थी. इनवॉइसेस में जो पर्टिकुलर्स 46 के थे या बिल ऑफ सप्लाई के जो पर्टिकुलर्स थे या फिर जो सर्विसेज से रिलेटेड पर्टिकुलर्स थे, उसके ऊपर ये ओवरराइडिंग इफेक्ट देने के कारण से कर रहे थे. तो इसलिए अब इन्होंने क्या कर दिया, जो रूल 46A है उसमें अमेंडमेंट लिख दिया कि जो सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होगी, ये अमेंडमेंट है, जो सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होगा उसके अंदर जो पर्टिकुलर्स हैं 46 के या 54 के या 49 के, ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे. 46 इनवॉइस से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड पर्टिकुलर्स और 49 बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड पर्टिकुलर्स. तो 46 तो क्या है? टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स की बात कर रहा है. 49 बिल ऑफ सप्लाई के पर्टिकुलर्स की बात कर रहा है. और पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इनवॉइसेज इशूड इन स्पेशल केसेस, जो मोटा मोटी सर्विसेज स्पेशल सर्विस सप्लायर्स हैं उनकी बात कर रहा है. अब यहाँ पे देखिए एक और अमेंडमेंट आया ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड. ये कह रहे हैं ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड. अब बेसिक चीज क्या है? ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या है? मैंडेटरी है. ई इनवॉइसिंग के जो आपके प्रोविजंस हैं, जब आपका जो टर्नओवर है 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, जो कि अब 5 करोड़ हो जाएगा, अगस्त में लिमिट वापस चेंज होएगी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस है मैंडेटरी है उन लोगों के लिए. पर सर्टेन जो सर्विस सप्लायर्स वगैरह हैं, सर्टेन एंटिटीज़ को एग्जेम्पशन कर रखा है. तो अब बात ये आती है कि जैसे सपोज कीजिए सर्विस सप्लायर्स हैं नोटिफाइड, जैसे सर्विस सप्लायर हो गए, जो आपके इंश्योरर्स हो गए, बैंकिंग कंपनी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, NBFCs हो गए, जो नोटिफाइड सर्विस सप्लायर्स हो गए, GTA वाला हो गया, या फिर आपके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब उन लोगों के लिए एग्जेम्पशन है. तब बात ये आ रही थी, दिमाग में ये बात आई कि सपोज कीजिए कोई बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है.
अब वो एग्जेम्प्ट है, वो सर्विसेज दे रहा है, तो अगर वो साथ में कोई गुड सप्लाई कर दे तो क्या उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर, जैसे बुलियन की सप्लाई कर दी, तो क्या ये एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इनवॉइसिंग के प्रोविजन से? तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो एग्जेम्पशन है इनवॉइसिंग का वो एंटिटी एज अ होल है। तो जो एग्जेम्पशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग is applicable for entity as a whole and is not restricted to what the nature of supply made by the said entity. So this is very, very important amendment. Remember, exemption from generation of e-invoices is available for the entity as a whole and not restricted by the nature of supply made by the said entity. In terms of notification number 13/2020, as amended, certain entities or certain sectors such as SEZ units, say they are exempted from mandatory generation of e-invoices as per 48(4). The issue which arose for consideration was whether this exemption from mandatory generation of e-invoices is available for entity as a whole, क्या ये entities as a whole है, या whether the same is available only in respect of certain supplies made by the said entity. क्या ये एंटिटी के लिए मिलेगा या सर्टेन सप्लाईज विच हैज बीन मेड बाय द एंटिटी? तो क्लैरिफाई क्या किया है, इट हैज बीन हियर बाय क्लैरिफाइड दैट the said exemption from generation of e-invoices is for entity as a whole and is not restricted to what? The nature of supply being made by the said entity. It is not restricted to what? The nature of supply which has been made by the said entity. For example, उन्होंने दिया है banking companies providing banking services. They may be involved in making supply of some goods including bullion. The said banking company is exempted from mandatory issuance of e-invoice for all the supplies of goods or services. They will not be required to issue e-invoice in respect of any of the supplies which has been made by it. तो ये invoice related provisions हमने discuss किए. Then relating to what? Accounts, records and e-way bill. e-way bill के relation में ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है. अमेंडमेंट ये क्या है कि पहले जो इमिटेशन ज्वेलरी थी वहाँ पे ई-वे बिल वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर दिया है, ई-वे बिल बेसिकली इज नीड्स टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ से इमिटेशन ज्वेलरी. तो हमने देखा था रूल 138(14) के अंदर ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. उसमें आ रहा था ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ्स वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स, ये आ रहा था लिखा हुआ. अब उसमें इन्होंने बोल दिया एक्सेप्टिंग क्या, इमिटेशन ज्वेलरी. यानी इमिटेशन ज्वेलरी का अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, इमिटेशन ज्वेलरी पहन लो वही बढ़िया है, क्योंकि देखिए आजकल लूटपाट की घटना इतनी है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है. तो ई-वे बिल इज टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, इमिटेशन ज्वेलरी. इमिटेशन ज्वेलरी केस में आपके क्या है, ई-वे बिल जनरेट करेंगे. तो रूल 138(14) illustrates the cases where e-way bill is not required to be generated. One such case is jewelry, goldsmith and silversmith wares and other articles. That is chapter 71. They are being transported. Thus, jewelry, goldsmith, silversmith wares and other articles of chapter 71 can be transported without generation of e-way bill. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, e-way bill is need to be generated फॉर ट्रांसपोर्टिंग से इमिटेशन ज्वेलरी. ये अमेंडमेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा, कहीं बाई चांस एमसीक्यू में पूछ ले. तो नीड टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ से इमिटेशन ज्वेलरी. अब बात आती है क्या, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट. तो एक तो इन्होंने ये अमेंडमेंट किया है कि अगर सपोज कीजिए चालान जो जनरेट किया जा रहा है, देयर इज फेलियर ऑफ बैंक टू कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ सिन, दैट इज चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन कॉमन पोर्टल. तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, द सेम कैन बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल ऑफ द आरबीआई. सो दिस इज अ प्रोसीजरल बेसिकली अमेंडमेंट. सो अपना पैसा निकल गया, ठीक है, चालान जनरेट हुआ पर कम्युनिकेट नहीं हो पाया,
कॉमन पोर्टल पे, तो उस केस के अंदर क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर क्रेडिट मिल जाएगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल ऑफ द आरबीआई। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बी अपडेटेड on the basis of e-scroll of RBI in case there is a failure of the bank to communicate the details of challan identification number to the common portal. So in cases where bank failed to communicate the challan identification number, details of tax paid through e-payment mode to GST system for updating e-cash ledger, the ECL of such taxpayers are updated next day on the basis of what? E-scroll file containing the successful payment against SIN as shared by the banks with RBI. However, there is presently no provision in the CGST rules. Rules में ये provision नहीं था for providing what? Updation of the ECL based on e-scroll of RBI. So ये जो lapse था, ये Controller and Auditor General ने they highlighted the need for having a specific provision in the law for updation of the electronic cash ledger on the basis of e-scroll of RBI. Thus, in order to regularize the process of updating ECL of the taxpayer on the basis of e-scroll, data received from the RBI in cases where payment has been received successfully, but banks fail to share the SIN number. So they have made the amendments. So where the bank fails to communicate the details of challan identification number to the common portal, the electronic cash ledger may be updated on the basis of e-scroll of RBI in cases where details of the said e-scroll, they are in conformity with the details of the challan which has been generated in form GST PMT 06 on the common portal. तो ये तो आप देख लीजिएगा एक बार, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर आ रहा है हमारे पास क्या, ये एक बेसिकली जो लेट फीस है उसके रिलेशन में कंपोजिशन स्कीम्स आती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डिलेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है उसकी इन्होंने क्या है, लेट फीस को रैशनलाइज किया है। तो बेसिकली सेक्शन 47 स्ट्यूपलेट्स अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ से लेट फीस। आपने देखा कि भाई लेट फीस आपको देनी पड़ेगी ऑन फॉर से डिलेड फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। वो बेसिकली वहाँ तो दे रखी है आपकी कितनी, 100 रुपीज़ एवरी डे, subject to maximum of what 0.25% of the turnover in state या union territory. ये दे रखिए equal amount will be payable in the SGST law also. So this late fees can be say waived of partially or fully by the central government. Consequently, since the inception of GST law, late fees is being regularly waived. तो ये चलता है फीचर इनका। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो लेट फीस है उसके रिलेशन में ये लेट फीस कितनी पेएबल रहेगी उसका बता दिया। तो इतनी कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेएबल अंडर सेक्शन 47 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु फेज टू फर्निश एनुअल रिटर्न बाय ड्यू डेट, ये रहेगा। तो देखिए यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर does not exceed rupees 5 crores in the relevant financial year, उसकी जो लेट फीस रहेगी वो क्या रहेगी, 50 रुपीज़ पर डे रहेगी या 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी 0.02 प्लस 0.02 ये रहेगी एक तरह से विच से लोअर। जिनका 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक का टर्नओवर है उनका एनुअल रिटर्न की डिलेड फाइलिंग फीस 100 रुपीज़ एवरी डे रहेगी, 100 रुपीज़ एवरी डे, ठीक है। 50 फॉर CGST एंड 50 फॉर SGST, और बाकी 0.04% ऑफ द टर्नओवर विच से लोअर। और 20 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए कुछ नहीं है, वही है जो अपन ने पढ़ा, 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ CGST, 100 रुपीज़ SGST, 200 एवरी डे, और 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, 0.25% CGST एंड 0.25% से SGST विच से लोअर। तो ये तो देख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कारण से आप GSTR 1 और GSTR 3B सब्सिक्वेंट पीरियड का नहीं फाइल कर सकते। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, टैक्स पेयर
taxpayer to be intimated with the difference in liability, taxpayer to be intimated with difference in liability in form GSTR1 and form GSTR3B, and be requested to pay the differential liability or explain the difference. एक 88C क्या है, नया रूल इन्होंने इंसर्ट किया है. ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज हैं GSTR1 के अंदर, आपकी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू द लाइबिलिटी इन फॉर्म GSTR3B, ठीक है, तो फिर वो आपको नोटिस भेज रहे हैं कि भाई ये बताइए डिफरेंस किस कारण से आ रहा है. अगर डिफरेंस का कारण समझाइए, नहीं तो ये अमाउंट आप पे कीजिए. अगर नहीं करते हो तो आपकी ब्लॉकिंग हो जाएगी क्या, फॉर फर्निशिंग ऑफ GSTR1 3B. सो अ न्यू रूल 88C हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म. New rule 88C has been introduced to determine a mechanism for dealing in the difference in the liability reported in the statement of the outward supplies between GSTR1 and form GSTR3B. Accordingly, with the tax liability as per form GSTR1 for a tax period, जहाँ tax liability GSTR1 में ज़्यादा आ रही है in comparison to GSTR3B for that period by more than specified extent, जो आप बताएंगे वो, तो रजिस्टर्ड पर्सन उसको इंटीमेट किया जाएगा ऑन द पोर्टल ऑफ कि भाई ये डिफरेंस आ रहा है, या तो आप ये डिफरेंशियल टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करो, या आप इस डिफरेंस को क्या करो, एक्सप्लेन करो. तो अनलेस द टैक्स पेयर आइदर डिपॉजिट्स द स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है, आइदर डिपॉजिट्स द स्पेसिफाइड अमाउंट, या फिर क्या है, फर्निशेज अ रिप्लाई फॉर द सेम, सच पर्सन वुड नॉट बी अलाउड टू फर्निश. इसकी ब्लॉक हो गई, GSTR1 फर्निश नहीं कर सकता ये, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से इनवॉइस को रिपोर्ट नहीं कर सकता है फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड. ये ब्लॉकिंग हो गई. देखिए, तो दिस इज व्हाट रूल 88C. क्या 88C है, वेयर अ टैक्स पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन, वेयर टैक्स पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड, यानी GSTR1 में या IFF में जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है इन कंपैरिजन टू टैक्स लायबिलिटी इन GSTR3B, ठीक है. तो यहां पे बोल रहा है इट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इन परसुएंस इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न for that period furnished in form GSTR3B by such amount या such percentage as may be recommended by council shall be intimated of such difference. वो जब आएगा तो उसको intimate किया जाएगा. Then such registered person shall be intimated in prescribed form electronically on common portal. A copy of intimation will be sent to his email address at the time of registration, जो भी उसने email address भेजा है. Then in the said intimation, the said difference between GSTR1 and 3B will be highlighted, yeah, and he will be directed to pay the differential amount within 7 days along with the interest, या फिर explain the reasons of the difference, क्यों ज़्यादा liability आ रही है 1 में 3B के comparison में within से 7 days, ठीक है. अब ये जो registered person है shall on receipt of the aforesaid intimation, registered person है shall on receipt of the aforesaid intimation either pay the amount of the differential tax liability. Pay the amount of differential tax liability is as specified in the intimation, fully or partially, along with the interest, and furnish the details thereof electronically on the common portal. या फिर रिप्लाई फर्निश करेगा, या फिर रिप्लाई फर्निश करेगा कि भैया ये कारण है डिफरेंस का, हो सकता है किसी पीरियड में उधर कम हो रही है उधर ज़्यादा हो रही हो, लाइकवाइज, ठीक है. कितने दिन के अंदर, विद इन 7 days. And where the amount specified in the said intimation remains unpaid within 7 days, या एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ उनसे रिसीव, या जो आपने एक्सप्लेनेशंस पढ़े उससे प्रॉपर ऑफिसर क्या है सेटिस्फाइड नहीं हुआ आपने जो एक्सप्लेनेशंस दिए, तो फिर ये लोग रिकवरी करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 के हिसाब से. फिर क्या होएगा, रजिस्टर्ड पर्सन ये क्या है उसकी रिकवरी होगी. फिर क्या है और फर्दर बोल रखा है, ये अपना ब्लॉकिंग की बात कर रहे हैं ये, फर्दर अ रजिस्टर्ड पर्सन टू whom
such intimation of difference between GSTR 1 and 3B for tax period issued will be blocked from furnishing GSTR 1 या using invoice furnishing facility for subsequent tax period unless he deposit the amount in the intimation या explain the reasons for unpaid amount. In other words, registered person to whom intimation is issued under 88C has been they say intimation is issued under 88C has been issued on common portal in respect of tax period shall not be allowed to what furnish. कुछ थोड़ा ऐसे ही चलता है, shall not be allowed to furnish क्या details of the outward supply. कुल मिला के आप बात कर लो, इतनी बात है कि आपने डिफरेंसेस को या तो बता नहीं पाए क्यों आ रही है अंतर, या डिफरेंशियल टैक्स और इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आपकी जो GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का जो था मामला वो क्या है, ब्लॉक कर दिया जाएगा. जब तक ब्लॉक रहेगा ये आप आगे के रिटर्न नहीं भेज सकते हो जब तक कि ये अमाउंट को आप या तो जमा नहीं करा देते अलॉन्ग विद इंटरेस्ट या फिर आप उनके रीजंस फर्निश नहीं करते हो. ठीक है, इसके लिए रिटर्न्स वाले चैप्टर में भी ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट आ गया है. ठीक है, तो ये बेसिकली अपन ने देखा. अब रिफंड्स की बात करते हैं. रिफंड्स की बात कर रहे हैं. अब यहां पे जैसे कोई सप्लाई की गई, ये सप्लाई जैसे बिल्डर्स ने कर दी और ये बिल्डर ने एडवांस ले लिया और सप्लाई की. अब एडवांस ले लिया, बिल्डिंग बना के देंगे और किसी कारणवश क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. किसको कर रहे हैं सप्लाई? अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे थे. भाई वो काय को GST में रजिस्टर कराएगा तो मकान खरीदने गया था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो अब इन्होंने एनेबलिंग प्रोविजन दिया है. एनेबलिंग प्रोविजन ये है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन भी क्या कर सकता है, कैन मेक एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ GST. जो उसने पे किया है उसका रिफंड की वो एप्लीकेशन लगा सकता है. लेट अस डिस्कस द सेम. जरूरत क्यों आ जाती थी ये रिफंड लेने की? इसलिए आ जाती थी अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्योंकि यदि जो सप्लायर है उसने ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया और उसका जो क्रेडिट नोट है, टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द क्रेडिट नोट, वो भी एक्सपायर हो गई. अगर क्रेडिट नोट दे देता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. फॉर सप्लायर कैन रिड्यूस हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टू द एक्सटेंट. परंतु ये क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट भी खत्म हो गई तो सप्लायर कहता है भाई मैंने तो GST जमा करा दिया, मुझे अब इसका रिफंड मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको ये पैसा बिना GST के दूंगा. तो इस सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए इन्होंने ये 89 के अंदर क्या है, अमेंडमेंट किया. अमेंडमेंट ये है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो भी क्या है, रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है. टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा के ही कैन अप्लाई फॉर रिफंड. तो ये अभी अपन देखते हैं क्या कहते हैं. ये देखिए, प्रिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन for refund by unregistered persons. Prescribing manner of filing application, say for refund by unregistered persons. So there are cases for where unregistered buyers has entered into an agreement or say contract with builder के साथ उन्होंने enter किया है for supply of services of construction of flats या building etc. and has paid the amount towards consideration for such service. आइदर या तो पूरा दे दिया या पार्शली दे दिया along with the applicable tax and had get the said contract या agreement cancel हो गया contract subsequently due to what, non completion या delay in construction activity in time or say other reasons. किन कारणों से या टाइमली कंप्लीशन नहीं हुआ या किसी भी कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया गया. इन अ नंबर ऑफ सच केसेस the period of issuance of credit note on account of cancellation of service under the provisions of 32 may have already got expired by that time. समस्या यहाँ आ रही है जहाँ क्रेडिट नोट की जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो गई. अगर नहीं होती तो सप्लायर क्रेडिट नोट जारी कर देता, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है पूरे अमाउंट के साथ, और अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर देता. बट इन सच केसेस द सप्लायर, अब जहाँ क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट निकल गई तो फिर सप्लायर क्या कह रहा है कि भैया मैं रिफंड करूंगा ऑफ द अमाउंट, ये GST जितना अमाउंट है उसको छोड़ के बचे हुए अमाउंट को मैं रिफंड कर दूंगा. सो हियर द सप्लायर मे रिफंड द अमाउंट टू द बायर आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय हिम फ्रॉम द बायर.
Similar situation they may also arise in long term insurance policies, जहाँ premium for the entire period of term of policy is paid in upfront along with the applicable GST, and the policy is subsequently required to be terminated prematurely due to some reasons. फिर ये कारण हो गया. In some cases, the time period for issuing credit note under the provisions of 34 may have expired, and therefore the insurance company may refund only proportionate premium of the net of GST. ठीक है, proportionate premium करे बोलो net of GST. ये कब हो रहा है देखिए, with the time period for issuance of credit note under 34 has not expired at the time of cancellation या termination of the agreement या contract for supply of service, concerned supplier can issue credit note to the unregistered person. In such cases, supplier would be in position to also pay back the amount of tax collected by him from the unregistered person, and therefore there will be no need for filing refund claim by unregistered person in these cases. वहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. Accordingly, the refund claim can be filed by unregistered person in only in those cases where at the time of cancellation या termination of agreement या contract जो time limit है for issuance of credit note under section 34 has already expired. Supplier credit note अब उस केस में जारी नहीं कर सकता, तब ये refund की situation arise होगी. अब पहले तो कोई facility नहीं थी. Hitherto there was no facility available to such unregistered buyers या recipients for claiming refund of the amount of tax borne by them in event of cancellation of the contract या agreement for supply of services of construction of flat, building or termination of long-term insurance policy. However, 54(1) already provides that any person may claim refund by making application under up to 2 years from the relevant date, और 54(8)(e) के अंदर in case where unregistered person has borne the incidence of tax, has not passed on the same to any other person, the refund can be claimed by refund shall be paid to him instead of being say credited to the consumer welfare fund. यहाँ doctrine of unjust enrichment applicable नहीं होती है, is not applicable, क्योंकि उसने burden pass on ही नहीं किया है, उसे तो खुद नहीं अगर वो bear किया है. Thus, in order to enable such unregistered person, this is the amendment, remember. In order to enable the unregistered person to file application for refund under 54(1), here a new functionality has been made on the common portal which allows unregistered person to make temporary registration and apply for refund for unregistered person in form GST RFD 01. 89(2) के अंदर अमेंडमेंट किया गया है to provide the documents which are required to be furnished along with the application for refund by unregistered person and statement to be uploaded along with the said refund application. क्या ये देना पड़ेगा? इनको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा containing the details of invoices जिसके थ्रू इन्होंने GST का बर्डन बियर किया है. That is number, date, value, tax paid and details of payment in respect of which refund is being claimed along with the copy of such invoices. ये statement बना रहे along with copy of invoices, proof of making payment to the supplier, the copy of agreement या registered agreement या contract as applicable entered with the supplier for supply of service. ये जो लेटर सप्लायर ने जारी किया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट, लेटर इशूड बाय द सप्लायर फॉर कैंसिलेशन या टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, जो ये पैसा उसको मिला है अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ द और टर्मिनेशन ऑफ सच एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द प्रूफ दैट इन केस वेयर रिफंड इज क्लेम्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई हैज बीन से कैंसल्ड और टर्मिनेटेड. ठीक है, ये चीज देनी पड़ेगी इन केस वे रिफंड इज क्लेम्ड बाय से अनरजिस्टर्ड पर्सन जहां एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस हैज बीन से कैंसल्ड और टर्मिनेटेड. अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें बता दिया कि भैया ये हमारे इनवॉइस नंबर था, ये डेट थी, ये वैल्यू था, ये टैक्स पेड था, ये डिटेल्स ऑफ से पेमेंट ऑफ ये टैक्स था जिसके रिलेशन में हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं. कॉपी ऑफ इनवॉइस देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ पेमेंट देना पड़ेगा, एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ेगी, जिस एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है उनसे कैंसिलेशन का लेटर लग के देना पड़ेगा. ठीक है, उसके अलावा सप्लायर भी देगा क्या? अ सर्टिफिकेट इशूड बाय सप्लायर, अ सर्टिफिकेट
इशूड बाय सप्लायर, ठीक है, to the effect that he has paid tax in respect of said invoices, invoices का tax pay किया है, on which refund is being claimed by unregistered person, he has not adjusted tax amount involved against any of his tax liability by issuing credit note, ये भी बताना पड़ेगा, and he has not claimed refund and will not claim refund of the tax involved in respect of these invoices. तो ये supplier को भी necessary certification देना है. For not issuance of credit note and not claiming of refund. ठीक है, ये याद करके जाइएगा. In case where the refund is claimed by an unregistered person, where agreement for the contract of supply has been, say, cancelled, or agreement for contract of supply of service has been cancelled or terminated. Moreover, it has been provided that certificate by a chartered accountant or cost accountant, क्योंकि unjust enrichment apply नहीं हो रहा, तो certificate from chartered accountant or cost accountant to the effect that no unjust enrichment in case of applicant is not required to be furnished in case where refund is claimed by unregistered person who has borne the incidence of tax even if the amount of refund claim exceeds rupees 2 lakhs. So certificate नहीं required है. Or what is the relevant date for filing the refund claim? We have to make the application for refund within 2 years from the relevant date, as you are aware. So the relevant date in case of refund by a person other than supplier is date of receipt of goods or services or both. So here the date of issuance of cancellation letter for that contract will be the date of receipt of the services. So in given case of refund, the date of issuance of cancellation of contract या agreement for supply by the supplier will be considered as what? Date of receipt of the services. तो इसके जब cancellation का letter मिल जाएगा उसके 2 साल के अंदर you have to make a refund application. In case where the amount paid by the supplier to the unregistered person on cancellation या termination of the agreement या contract for supply of service is less than the amount paid by the unregistered person to the supplier, only proportionate amount of tax involved in such amount will be refunded. कम पैसा दे रहा है तो 10 लाख में से उसने 8 लाख ही दिया है, 10 लाख पे उसने 5% GST चार्ज किया था, तो अब 8 लाख पे 5% जो बनता है वही उसको क्या है रिफंड मिल पाएगा. तो ये हो गया. एक क्लैरिफिकेशन है डिमांड्स और रिकवरी के लिए. ये क्या कह रहा है, अगर इन्होंने कोई शो कॉज नोटिस जारी किया, शो कॉज नोटिस जारी किया सेक्शन 74 का इन्वॉल्विंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन का शो कॉज नोटिस इन्होंने जारी किया, पर ये चार्जेस ऑफ फ्रॉड ये प्रूव नहीं हो पाए. जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए थे चार्जेस फॉर फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट वगैरह कुड नॉट बी प्रूव्ड. तो यही शो कॉज नोटिस किसका मान लिया जाएगा? 73 का मान लिया जाएगा. यही शो कॉज नोटिस किसका मान लिया जाएगा? 73 का मान लिया जाएगा. तो अगर अब देखो, सपोज करो 17-18 फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, एंड ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग एनुअल रिटर्न मान लो अभी 31/12/2018 है. उसके एंड से आपके 4 साल 6 महीने के अंदर आपके नोटिस जारी हो रहा है. अब यहां पे ये नोटिस इन्होंने जारी किया और डिमांड इनको क्या है, कंफर्म करनी है. ठीक है, अब ये चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए, ये एलिगेशन जो फ्रॉड वगैरह का था ये प्रूव नहीं हो पाया. तो यही नोटिस क्या है, अब ये सपोज करो इन्होंने 31/12/22 को दिया हुआ है, तो अब इस नोटिस को हम नॉर्मल पीरियड का माने तो नॉर्मल पीरियड के नोटिस की डिमांड तो आपके क्या है, जो मैक्सिमम है SCN कब तक आ सकता है? 2 साल 9 महीने में आ सकता है. तो 17-18 की जो फाइनेंशियल ईयर है 2 साल 9 महीने उसकी टाइम लिमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो गई. तो इस नोटिस से
तो ये डिमांड इस ईयर की नहीं ली जा सकती है, क्योंकि बार्ड हो गई है, ये चीज़ एक बताई गई है। अगर ये 18-19 की होती, 19-20 की होती और टाइमलाइन के अंदर आ जाती, इसमें शो कॉज नोटिस के टाइमलाइन में 2 साल 9 महीने वाली आ जाती, तब तो वो डिमांड का ये रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आधा पीरियड अंदर है, आधा बाहर है, तो जो पीरियड अंदर है शो कॉज नोटिस के टाइमलाइन के, उसकी डिमांड रिकवर हो जाएगी, बाकी की नहीं होगी। ये है। दूसरा ये है कि भाई चार्जेस प्रूव नहीं हुए तो एडजुडिकेशन कब होगा, तो इसके लिए जो ये एडजुडिकेशन की बात है वो तो 75 के अनुसार हो रहा है, क्योंकि ये अपीलेट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है। तो अपीलेट अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर देती है, उसका एडजुडिकेशन कितने टाइम के अंदर होता है, 75 में देखना पड़ता है। वो 75 में क्या होता है, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है या कोर्ट है, उसके 2 साल के अंदर जब भी ये ऑर्डर मिलेगा, उसके 2 साल के अंदर ये क्या है, ये डिमांड को एडजुडिकेट करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट दिस सर्कुलर इज। क्लैरिफिकेशन नंबर 1, clarification pertaining to cases, clarification pertaining to cases where it is concluded that the notice issued under 74(1) is not sustainable for reasons that charges of fraud not being established against the noticee and tax payable to be determined as if the notice was issued under 73(1). So here basically section 75(2) provides that in case where the appellate authority या appellate tribunal या court concludes that the notice issued by proper officer under 74(1) is not sustainable, ये notice sustainable नहीं है for the reason that charges for fraud या willful misstatement या suppression of facts to evade tax have not been established against noticee, तो फिर क्या law ने provide किया है, then the proper officer shall determine the tax payable by the noticee deeming as if it is a notice issued under 73(1) involving normal period of limitation, extended नहीं की normal period of limitation की बात करेंगे। तो अब यहां पे आता है, देखिए इशू और क्लैरिफिकेशन, इशू और क्लैरिफिकेशन चल रहा है। इन सम केसेस वेयर द शो कॉज नोटिस, इन सम केसेस वेयर द शो कॉज नोटिस SCN हैज बीन इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर to the noticee under 74(1) for demands of tax not paid, short paid या erroneous refund या ITC wrongly availed or utilized, the appellate authority or the appellate tribunal or court concludes that such notice is not sustainable under 74(1), क्योंकि ये जो charges हैं for say fraud, willful misstatement, suppression of facts to evade tax has not been established against the noticee and directs the proper officer to redetermine the tax payable amount of tax payable by deeming the notice to have been issued under 73(1) in accordance with the provisions of 75(2). 74 का नोटिस नहीं मान के 73 के हिसाब से डिमांड कंफर्म करो। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट, व्हाट इज द टाइम पीरियड for redetermination of the tax interest and penalty payable by noticee in such cases। तो ये तो 75 के अंदर ही दे रखा है, 75(3) में ही आ गया इसका आंसर। इसका आंसर तो 75(3) में आ गया। 75(3) में क्या आंसर आ गया कि जब भी ये एपिलेट अथॉरिटी है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल है या कोर्ट है, उसका ये फैसला आता है, तो एडजुडिकेशन कितने टाइम में होगा, एडजुडिकेशन कितने टाइम में होगा, एडजुडिकेशन होगा उस केस में 2 years from the date of communication of the direction of the appellate authority या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स appellate ट्रिब्यूनल या कोर्ट। ठीक है, सब में तो वहीं दे रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो ये देखना है सो कॉज नोटिस सस्टेनेबल है या नहीं है। सस्टेनेबल ही नहीं है तो क्या एडजुडिकेट करोगे भैया। तो ये तो पहली तो एडजुडिकेशन की बात कर रहा है। तो सेक्शन 75(3) प्रोवाइड दैट द ऑर्डर रिक्वायर्ड टू बी परस्यूड, that order required to be issued in pursuance of the directions of the appellate authority या appellate tribunal या court has to be issued within what 2 years from the date of communication of the said direction। कितने टाइम के अंदर ये एडजुडिकेशन करना है, 2 साल के अंदर करना है, टाइम लिमिट 2 साल है। अकॉर्डिंगली इन केसेस वेयर डायरेक्शन इज इशूड बाय द appellate authority या appellate tribunal या court
to redetermine the amount of tax payable by notice by deeming the notice issued under 73(1) in accordance with the provisions of 75(2). The proper officer is required to issue order of redetermination of tax interest and penalty payable within the time limit specified under 75(3). Time limit क्या रहेगी? वो 2 साल रहेगी, 2 years from the date of the communication of the said direction by the appellate authority या ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऐसा केस में भी। सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 था, से 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर इन्होंने 20-21 तक के पीरियड की एक शोकॉज नोटिस जारी किया था, 75 का किया था शोकॉज, सॉरी 74 का शोकॉज नोटिस जारी किया था। ठीक है, अब ये शोकॉज नोटिस इन्होंने जारी कर सकते हैं ये कितने टाइम के अंदर? यहाँ से देखें शुरुआत, 4 साल और 6 महीने के अंदर ये नोटिस जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटिस जारी कर सकते हैं। और फिर डिमांड को कंफर्म करने की बात है 5 साल, ये कब से आ रही है? एनुअल रिटर्न से आ रही है। अब यहाँ पे एसएससी चला गया कि भैया ये एससीएन जो इन्होंने जारी किया है वो गलत है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन का एससीएन जारी किया गया है, एडजुडिकेशन ये गलत कर रहे हैं, ये बोला। तो कोर्ट ने बोला भैया ठीक है, ये आप 73 के हिसाब से क्या है नोटिस मानो। अगर ये 25/12/2026 को ये निर्णय आता है कोर्ट का, तो अब ये टाइम लिमिट कितने टाइम के अंदर ये डिमांड रीडिटरमाइन कर सकते हैं? 2 साल। 26 से 2 साल के अंदर क्या है, जब ये कम्युनिकेट हो जाएगा डायरेक्शन, उससे 2 साल के अंदर क्या है ये डिमांड कंफर्म करेंगे। पर किस पीरियड की? जो पीरियड सस्टेनेबल होगा 73 के हिसाब से उसी की तो करेंगे। तो अब आगे आती है बात क्या? पीरियड की। तो हाउ द अमाउंट पेएबल, अब ये आ गया देखो, हाउ द अमाउंट पेएबल बाय द नोटिसी, हाउ द अमाउंट पेएबल बाय द नोटिसी deeming the notice to have been issued under 73(1) shall be recomputed या redetermined by the proper officer as per the provisions of 75(3). कैसे ये करेंगे? तो देखो सीधी सी बात है, in case where the amount of tax, interest and penalty, in case where the amount of tax, interest and penalty payable by notice is required to be redetermined, by the proper officer in terms of 75(2), the demand would have to be redetermined keeping the consideration the provisions of 73(2) read with 73(10). ठीक है, 73(2) timelines read with what? 73(10). So combined reading of 73(1), 73(2), 73(9) and 73(10) transpires that in case which do not involve fraud, willful misstatement, suppression of facts to evade payment of tax, SCN जो जारी होगा वो होगा 2 years and 9 months के अंदर from the date of furnishing of the annual return for the financial year to which the tax paid, short paid या ITC wrongly availed or utilized relates या rate of erroneous refund। ये तो आपको पता ही है। तो अब therefore in cases जहाँ प्रॉपर ऑफिसर हैज टू रीडिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेएबल, डीमिंग क्या? ये नोटिस है 73(1) का इन टर्म्स ऑफ 75(2). सेम कैन बी रीडिटरमाइंड फॉर सो मच। ये जो रीडिटर्मिनेशन करनी है वो उसी अमाउंट की तो कर पाओगे, सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड या ITC रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज्ड or that of erroneous refund in respect of which SCN was issued within the time limit specified under 73(2) read with 73(10). तो यदि वो टैक्स डिमांड उस पीरियड की आ रही है तब तो कंफर्म हो जाएगी, उस पीरियड की है ही नहीं, बार्ड बाय लिमिटेशन है, तो किसको कंफर्म करोगे भैया? सीधी सी बात है, 17-18 की थोड़ी कर पाओगे। अब जब आपने शो कॉज नोटिस ही 73-74 का लेट भेजा है, 2 साल 9 महीने के बाद भेजोगे तो वो तो बार्ड ही होगी, बट नेचुरल है। 10 only the amount of tax short paid, not paid या ITC wrongly availed या utilized या tax payable on account of erroneous refund along with interest and penalty payable in terms of 73 can be redetermined where show cause notice was issued within क्या 2 years and 9 months from the due date of furnishing of annual return for the respective financial year or from the date of the erroneous refund। in case जहाँ 74(1) का नोटिस जारी किया गया है, 74(1) का नोटिस जारी किया गया बियॉन्ड 2 years and 9 months, खत्म, किस्सा खत्म।
from the due date of furnishing of annual return या to which the demand relates or from date of anonymous refund, and appellate authority concludes that notice is not sustainable under 74(1), thereby deeming the notice to issued under 73(1). ये जो entire proceeding क्या हो जाएगी इस केस के अंदर ड्रॉप हो जाएगी। साला 17-18 की चीज का नोटिस अगर आप टिका रहे हो 23 में जाके और उसके बाद मालूम चलता है कि ये तो नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन का नोटिस होना चाहिए, तो उसकी टाइम लिमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है, तो आपकी ये डिमांड ड्रॉप हो जाएगी। इन केस वेयर SCN इन टर्म्स ऑफ 74 वाज इशूड फॉर टैक्स शॉर्ट पेड या नॉट पेड या रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज, ये 2 साल 9 महीने की टाइम लिमिट के अंदर आ रहा है। वो सपोज कीजिए उन्होंने 31/12/23 को 21-22 के रिलेशन में ही एक्सटेंडेड पीरियड का ठोक दिया, तो उस केस के अंदर बोला नहीं एक्सटेंडेड पीरियड प्रूव नहीं हो सकता, तो क्या नॉर्मल में ही चले जाएंगे। नॉर्मल में वो हो सकता है, अपीलेट अथॉरिटी कहती है नॉर्मल का मान के कर लो, तो नॉर्मल का मान के तो हो रही है, तो नॉर्मल में ही चले जाएंगे वो, ठीक है, नॉर्मल में ही वो डिमांड रिकवर कर लेंगे उसको। तो ये कह रहा है। तो इन केस वेयर SCN इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 74 वाज इशूड फॉर टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, टैक्स और से wrongly availed या utilized ITC या erroneous refund within 2 years and 9 months from the due date of annual return for the said financial year to which the demand relates or from the date of erroneous refund as the case may be, entire amount of demand क्या हो जाएगी, entire amount, पूरा का पूरा डिमांड का अमाउंट क्या है, कंफर्म कर दिया जाएगा। और अगर कुछ हिस्सा बाहर है कुछ हिस्सा अंदर है, तो here the SCN under 74(1) was issued for multiple financial year and where notice have been issued before the expiry of time period under 73(2) for 1 financial year, but after the expiry of what the said due date for the other financial year, तो जो फाइनेंशियल ईयर कवर्ड बाय नोटिस है, टाइमलाइंस के 2 साल के 9 महीने के अंदर है, उनकी डिमांड कंफर्म हो जाएगी, जो बियॉन्ड है उनकी कंफर्म नहीं होगी। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात है, पहले टाइम लिमिट तो शो कॉज नोटिस तो सस्टेन हो, शो कॉज नोटिस अगर सस्टेन हो सकता है तो फिर डिमांड भी एडजुडिकेट हो सकती है। डिमांड कब एडजुडिकेट हो जाएगी, जब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आएगा, उससे 2 साल के अंदर वो डिमांड भी क्या है, एडजुडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है, ये तो एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है कि भाई आपके 84 के अंदर यदि सपोज कीजिए जो GST की डिमांड है वो क्या हो जाती है, अपील में, रिवीजन में या अदर प्रोसीडिंग्स के अंदर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो फिर वो क्या है, रिड्यूस्ड डिमांड की रिकवरी करेंगे, ठीक है। तो ये जो अदर प्रोसीडिंग्स है इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की प्रोसीडिंग्स भी क्या है, शामिल है, क्योंकि इनका अधिकार भी होता है कॉरपोरेट के केसेस के अंदर एडजुडिकेशन करने का। तो एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। देखिए, एज पर सेक्शन 84 इफ द गवर्नमेंट ड्यूज अगेंस्ट द पर्सन अंडर CGST एक्ट दे आर रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, अपील, रिवीजन या अदर प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गवर्नमेंट ड्यूज, then an intimation of such reduction of the government dues has to be given by the commissioner to the concerned person and to the appropriate authority with whom the recovery proceedings are pending, and further recovery proceedings can be say continued in relation to reduced amount। तो जो ये other proceedings word यूज किया है जो सेक्शन 84 के अंदर, ये CGST एक्ट के अंदर नहीं डिफाइन किया गया है। तो जो it is to be mentioned that adjudicating authorities and appellate authorities under IBC, ये क्या है, quasi judicial authorities है to deal with the civil disputes pertaining to IBC, to deal with civil disputes pertaining IBC। For instance, IBC NCLT serves as an adjudicating authority for insolvency proceedings। जो नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल जो है, ये क्या है, बेसिकली they serve as an adjudicating authority for insolvency proceedings which are initiated on the application from any of the stakeholders of the entity, जो भी firm होगा, creditor होगा, debtor होगा, employee होगा, and they can pass appropriate orders approving the resolution plan। As proceedings conducted under IBC also adjudicate the government dues pending under CGST or under existing laws against the corporate debtor, the same appear to be covered under other proceedings। तो ये एक सर्कुलर दिया है
कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर की। नेक्स्ट क्या है? अपील्स एंड रिवीजन। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है कि आपके ऑर्डर इन ओरिजिनल की कॉपी जिसके अगेंस्ट में आपको जाना है, जिसके अगेंस्ट में जाना है, ये अगर ऑर्डर जो है ये अपलोड हो जाता है ऑन कॉमन पोर्टल, तो आपको फिर क्या है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। और यहां तो अपील क्या हो जाएगी? यहां पे टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग जो प्रोविजनल, जब आपने अपील फाइल करी तो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपका मिला, वही टाइम लिमिट बेसिकली बन जाएगी ऑफ दी अपील। ठीक है, तो देखिए इन केस यहां पे क्या दे रखा है, तो यहां पे इन केस ऑफ अपील, in case of appeal filed against the order of adjudicating authority, in case of appeal filed against the order of the adjudicating authority which is basically is uploaded on the common portal। अगर ऑर्डर ही अपलोड हो गया तो सबको ही विजिबल है, अपीलेट अथॉरिटी को भी विजिबल है। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर अपलोड हो गया है तो फिर किस बात की आपको डुप्लीकेसी थोड़ी करनी? रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ दी सर्टिफाइड कॉपी ये डिस्पेंस विद कर दिया है उस केस के अंदर। और जब आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, दैट विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दी अपील। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर वो अपलोड नहीं हुआ और 7 दिन के अंदर अगर आप इसको ऑर्डर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर अपलोड कर देते हो, हाथ से लिख के दे रहा है और आपने टप्पा लगा के उसको अपलोड करा है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाली डेट ही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज फिर आप जब दोगे तब होगी, बाद में देते हो तो एन अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू द अपीलेट अथॉरिटी, ये द सेम कैन बी फाइल्ड बाय द एग्रीड पर्सन, जो कि टैक्स पेयर हो सकता है, एग्रीड पर्सन डिपार्टमेंट वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, अंडर 1072 रेड विद रूल 109। अर्लियर एज पर रूल 1083, ये ओल्ड लॉ थी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अपील फाइल्ड बाय द एग्रीड टैक्स पर्सन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसीजन और ऑर्डर अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो, वॉज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। अपील अगेंस्ट, जिसका ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो, कितने दिन के अंदर सबमिट करना था? 7 days ऑफ फाइलिंग in form of appeal in form GST APL 01, and thus there was a requirement to be submitted this order in original की copy, certified copy आपको देनी पड़ती थी in all cases, and the date of filing appeal in case where certified copy 7 दिन के अंदर दे देते थे तो date of issuance of provisional acknowledgement हो जाता था, अन्यथा क्या होता था? date of submission of the certified copy। इसी हिसाब से जो डिपार्टमेंट वाले अपील में जा रहे थे तो अपील was filed under rule 1092 relating to what department, it also provided submission of what? Certified copy of the order in original, certified copy of the order appealed against within say 7 days of filing the application or in form GST APL 03। अब यहां बात आती है कि क्या जरूरत है इसकी, जब वो ऑर्डर इन ओरिजिनल की कॉपी अपलोड ही कर रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो विजिबल है वो तो सबको। तो हाउएवर इन जीएसटी रिजीम व्हेन ऑर्डर विच इज अपील अगेंस्ट, एन ऑर्डर विच इज अपील्ड अगेंस्ट is issued or uploaded by the adjudicating authority on the common portal, the same can be viewed by the appellate authority. The same can be viewed by appellate authority. Accordingly, the requirement of submission of the appellant by the appellant of certified copy of such uploaded order to vouch for its authenticity pays what the into insignificance, considering that the order was uploaded by digital authority, adjudicate authority using digital signature। सीधी सी बात है, जब उनके डिजिटल सिग्नेचर होके अपलोड हो गया है तो क्या लेना देना है। एंड सेम इज अवेलेबल फॉर व्यूइंग और डाउनलोडिंग बाय द appellate authority on the portal। However, in cases where decision or order has been passed manually, has not been uploaded on the common portal, and same is not available to the appellate authority on the common portal, in such cases non-submission of certified copy by appellant restricts the appellate authority for entertaining the same। Resultantly, in order to provide clarity on requirement of what? Submission of certified copy of the order appealed against and issuance of final acknowledgement by appellate authority, 108 3 और 109 में अमेंडमेंट किया है। ये अमेंडमेंट किया है, सीधी सी बात है, ये अमेंडमेंट क्या है कि आप
यदि अपीलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में गए हो कॉमन पोर्टल पे अपलोडेड है, तो आपको सर्टिफाइड कॉपी देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वेयर द डिसीजन और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, वेयर द डिसीजन और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट is uploaded on the common portal, a final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued by the appellate authority या authorized officer authorized by him in this behalf, and date of issue of provisional acknowledgement shall be the date of filing of the appeal. Date of issue of say provisional acknowledgement is what the date of filing of the appeal. सीधी सी बात है, जब आपने अपील फाइल की आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। However, where the decision or order appealed against, जो decision or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a certified copy of the said decision or order. Appellant क्या करेगा? Certified copy देगा 7 दिन के अंदर of filing of the form GST APL 01, और इसकी फाइनल एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग द अपील नंबर शैल बी इशूड बाय द अपीलेट अथॉरिटी या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। और इसमें भी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जिस दिन जारी किया गया उस दिन क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील मानी जाएगी। और यदि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसीजन और ऑर्डर इज नॉट सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GST APL 01, 7 दिन के अंदर नहीं देते हो तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच कॉपी शैल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील। जब आप सर्टिफाइड कॉपी दे दोगे तब ये क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग अपील मानी जाएगी। तो कॉमन पोर्टल पे अपलोड हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, कुछ नहीं करना, आपको देने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ तो सर्टिफाइड कॉपी दे देना 7 दिन के अंदर, जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जारी हो दिन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील हो जाएगी। और 7 दिन के अंदर नहीं दिया तो जब दोगे उससे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील होगी, टाइम लिमिट के अंदर अपील फाइल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। देन एप्लीकेशन टू द appellate authority by the department. An application to the appellate authority under 1072 shall be filed in form GST APL 03 along with the relevant documents either electronically or otherwise as may be notified by the commissioner, and provisional acknowledgement जारी की जाती है। अब यहाँ भी यही है कि जब डिसीजन और ऑर्डर की कॉपी अपलोड हो गई है कॉमन पोर्टल पे, फाइनल एक्नॉलेजमेंट अपील नंबर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट डेट ऑफ फाइलिंग अपील मानी जाएगी। और अगर ये डिसीजन और ऑर्डर क्या है 7 दिन के अंदर अपलोड नहीं हुआ है तो अपीलेंट को क्या है? सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देनी है 7 दिन के अंदर, ठीक है। ये अपलोड नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर क्या है? सर्टिफाइड कॉपी देनी है, इसकी भी फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, यही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील हो जाएगी। जब प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला वही डेट ऑफ फाइलिंग की अपील होगी। और 7 दिन के अंदर नहीं सबमिट करते हो तो फिर जब आपने ये सर्टिफाइड कॉपी डिपार्टमेंट वालों ने सबमिट करी वो क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील मानी जाएगी। सेम चीज़ यहाँ भी डिपार्टमेंट के रिलेशन में। उसके बाद देखिए अपने पास अधिकार है, अब विड्रॉल ऑफ अपील का राइट भी आ गया है, विड्रॉवल ऑफ अपील। और अगर उन्होंने अपन ने अपील फाइल करी तो पहले प्रोविजन नहीं था, नाउ दे हैव एनेबल्ड द प्रोविजन ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील, ओके, बिफोर द appellate authority. The same has been say introduced. So earlier there was no provision in the GST law for withdrawal of the appeal filed under 1071 and 2 before the first appellate authority against the decision or order of the adjudicating authority by aggrieved person or by the departmental officers. अब न्यू रूल 109C को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। आप क्या है? अपनी अपील जो आपने फाइल की है, ठीक है, सो हियर द सेम कैन बी विड्रॉन। दे हैव provided for withdrawal of appeal before the issuance of show cause notice or order under 10711, यानी एडजुडिकेटिंग ऑर्डर या वो जो आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है बेसिकली डिपार्टमेंटल जो अपीलेट अथॉरिटी है वो जो ऑर्डर दे रहे हैं उसके पहले या शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं उसके पहले आप क्या है? अपील को विड्रॉ कर सकते हो, उसको अपील को विड्रॉ कर सकते हो। सो हियर द अपीलेंट मे एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर 107(11) या बिफोर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर एडजुडिकेशन ऑर्डर जो अपीलेट ऑर्डर अंडर द सेड सबसेक्शन, बेसिकली जो भी पहले हो,
in respect of appeal filed under GST APL 01 या GST APL 03, they can withdraw the appeal या application. However, अगर final acknowledgement जारी कर दी गई है, फाइनल एक्नॉलेजमेंट जारी कर दी गई है, तो फिर अपील का विड्रॉल होगा जब अपीलेट अथॉरिटी उसकी अप्रूवल दे देगी, उसकी अप्रूवल दे देगी. However, where the final acknowledgement in form GST APL 02 has been issued, the withdrawal of appeal would be subject to what? The approval of the appellate authority. जब appellate authority उसकी अप्रूवल दे देगी तभी क्या है वो विड्रॉ हो सकता है. एंड सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ अपील शैल बी डिसाइडेड बाय appellate authority within say 7 days of the filing of application. उसके बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो विद इन द टाइमलाइंस स्पेसिफाइड. टाइमलाइंस के अंदर आप चाहो तो विड्रॉल के बाद वापस से अपील फाइल कर सकते हो या फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है. उसके अलावा देखिए अपने पास और जो मिसलेनियस में तो कुछ खास नहीं है. तो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग जो अथॉरिटी थी उसको हटा दिया गया है. उसकी जगह अब क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, ये क्या है? ये अब प्रॉफिटियरिंग जहां हो रही है उस मामलों को देखेगा. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेसेस द नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी फॉर एंटी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट्स. इसके लिए कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स इन्होंने किए हैं. ठीक है, इसकी परसुएंस में जो ये रूल्स हैं कुछ 127 अमेंड हो गया है. बाकी जो ये एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन, कोरम, शोरम, ये सब क्या है, ड्यूरेशन वगैरह हटा दिए गए हैं. सो हियर Section 171 of the Act basically contains the provisions relating to anti-profiteering measure under GST law. Anti-profiteering of the CGST rules prescribes the powers and functions of the National Anti-Profiteering Authority. तो ये नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी 137 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि ये क्या एग्जामिन कर रहे हैं कि भाई आईटीसी का जो बेनिफिट मिला है गुड्स और सर्विसेज क्रॉस सेक्शनल, क्या आपने उसका रेसिपिएंट को पास ऑन कर दिया है? रेट रिडक्शन का बेनिफिट आपने क्या रेसिपिएंट को पास ऑन किया है या नहीं किया है बाय कमेंसरेट रिडक्शन इन दी प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. तो इसके लिए अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी द सेम हैज सीज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 December 22. इसकी जगह क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दे आर नाउ द अथॉरिटी विच विल बी एग्जामिनिंग द इश्यूज रिलेटिंग टू एंटी प्रॉफिटियरिंग. जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, जो भी कंप्लेंट्स है, ये they will be done by the Director General of Anti-Profiteering and then they will be submitting the report to competition से commission. उसके अलावा जो अथॉरिटी वाली जो बात थी, ये इससे रिलेटेड प्रोविजंस को ओमिट कर दिया इन्होंने, ये सारे रूल्स ओमिट हो चुके हैं. उसके अलावा एक आ रहा था ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी, ये पूछा भी था एग्जाम में. ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी की जगह उसको क्या कर दिया है? ड्यूटीज की जगह वर्ड फंक्शन कर दिया है. तो ये भी एक अमेंडमेंट कॉन्सिक्वेंशियल है. अथॉरिटी शैल डिस्चार्ज द फॉलोइंग ड्यूटीज की जगह फंक्शंस कर दिया है. तो ये एक अमेंडमेंट था. उसके अलावा यहाँ रूल 161 के अंदर दे मेड जो वर्ड ऑर्डर आ रहा है वह इंटीमेशन और नोटिस की बात की गई है. तो ये बेसिकली जो जीएसटी लॉज के सारे अमेंडमेंट्स अपन ने कर लिए. कंपटीशन कमीशन हो गया है अब एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, ये ध्यान रखिएगा. और उसके जो कंपटीशन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसकी जो ड्यूरेशन टेन्योर वगैरह था, वो सब क्या है अब हटा दिया गया है. तो दिस वॉज द अमेंडमेंट. अब जब हमने क्लासेस डिस्कस करी है वो तो वहाँ रेलेवेंट प्रोविजंस वहीं कर लिए थे. और दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मई के अटेम्प्ट किया पर किसी कारण से उनका नहीं हुआ या छोड़ दिया उन्होंने मई का, नवंबर में कर रहे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो ये अमेंडमेंट्स क्या है गो थ्रू कर सकते हैं. कस्टम्स एंड न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अमेंडमेंट विल डिस्कस व्हेन सब्सिक्वेंटली लेटर उसको अपन डिस्कस करेंगे. ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है कस्टम्स में. न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी मोटा मोटी जो आपके रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, डीफिया, ईपीसीजी, ये सब चीज़ें सेम है. यह सीधी सी बात है, पूरी नई थोड़ी लिखेंगे, नई कुछ ऐसी बात नहीं लिखी है. बाकी जो एक्सपोर्ट्स हैं कोरियर के और पोस्ट से 10 लाख रुपए हो गया है पर कंसाइनमेंट. उसके अलावा बेसिकली ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया गया है. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ये अपन ने बुक में ऑलरेडी दे दी है.
अपना जो कंपाइलर है उसमें ऑलरेडी आ चुका है, वी आर जस्ट अवेटिंग फॉर द इंस्टीट्यूट क्या करता है उसके हिसाब से वी विल मेक अ डिस्कशन ऑन द सेम। ठीक है, लेट अस अवेट फॉर द सेम। जितने आप ये सारे अमेंडमेंट्स कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट फोकस ऑन दीज अमेंडमेंट्स।